Hello friends. So today we will discuss doctrine of colonial legislation. In one of the last lectures we have discussed about the doctrine of constitutional morality, which is you can say a new norm or a new doctrine evolved by the Honorable Supreme Court when deciding upon any cases which come in front of it. In a similar way, a doctrine of colonial legislation is also there. So this is basically a topic which is required for the law students, but uh, directly UPSC may not ask about this doctrine, but this doctrine must be understood by you all aspirants, so that if any question comes, which to just enrich the content, if any question comes which may relate to some content you may mention in your answer, so it will definitely increase the richness of your content, or it will make your content rich and you know and get you good score, because the examiner will feel that the various terms and various doctrines which are required, and you're not writing in a layman language, but you are writing in a way which is showing the understanding of the depthness of the topic. So to quote these things which are not layman, but which makes your answer rich, or which doesn't look like a layman is writing an answer, so an expert is writing an answer, so it should look like this. So to quote such doctrines in your answer, it is required to understand this topic. So that is why these doctrines are very much essential to understand, and this doctrine of colonial legislation in one of such doctrines. So what do you mean by colonial legislation? So this doctrine of colonial legislation is based on the maxim that what what can not be done directly can also not be done indirectly. ठीक है ना? अगर आप कोई चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना, दिखा के लोगों को नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका अगर हम मतलब समझें, तो उसका मतलब ये है कि कोई कानून अगर आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट, अगर पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट अगर कम्पिटेंट नहीं है किसी कानून को पास करने के लिए या बनाने के लिए, तो अगर वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रही है, तो अगर वो नहीं बना सकती, यानी कि अगर कोई स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, अगर वो उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्टली भी नहीं बना सकती, ठीक है ना। इनडायरेक्टली का मतलब कि इसमें क्या चीज़ है कि आपका जो कानून का लॉ का सब्सटेंस है वो देखा जाएगा, यानी कि वो जो लॉ है वो उसका इफेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एंड पर्पस क्या है, ठीक है ना। पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ द लॉ विल बी सीन. So court will examine what court will examine. See, court will examine the purpose and effect of the law, which is called the substance. Called the substance, and not the intention. इंटेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव देखना है, इंटेंशन नहीं देखनी है। किस सेंटर क्या चाहता है, क्या इंटेंशन है उसकी, उसके पीछे मंशा क्या है. सो यू शुड नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स. सो वट एवर हैज बीन रिटन इन द लॉ यू शुड रीड इन अ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट. तो आपको उसी तरीके से आपको समझना है जो उसमें लिखा हुआ है कानून में, एज ए होल. सो यू शुड रीड द स्टैट्यूट एज ए होल, ठीक है ना. एज ए होल यू शुड अंडरस्टैंड द पर्पस एंड इफेक्ट. तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव आपको समझना है. सो तो जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर आप एग्जाम्पल कर, तो अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि
the court will not look into the intention of the legislature. The court will look into the objective intention of the legislature. The court will look into the objective as well as purpose as well as effect of the law. So court will examine that. So if it is pertaining to the validity, which is constitutionality of the law, if it is pertains to that, then it is declared as valid. Otherwise, it is declared as null and void, or repugnant to the provisions of the constitution, or repugnant to the part third, which is fundamental rights, और दी बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. व्हाट यू कैन नॉट डन डायरेक्टली ऑल्सो कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. जैसे मान लीजिए हेल्थ है एक सब्जेक्ट. यू ऑलरेडी नो दैट हेल्थ इज अ सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, एंड इट इज competent for the state only to enact a law in health domain. So the state government can introduce any law related to health, related to improvement of health, or some health programs can be introduced by the state government to improve the health, or whatever Kanun and all those programs related to health can be introduced by the state government only, because the executive power is in coterminous with the legislative power. Now, you already know that the union government is not competent to enact such a law which is pertaining to the state list. So it is not competent for the parliament to enact any law which comes in the state list, है ना? That is the list second list. इसको बोलते हैं second list. State list मतलब list second of the 7th schedule of the constitution. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती उसके ऊपर कानून. दैट इज अंडरस्टूड. सो यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट, सो वी कैन राइट यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द हेल्थ सब्जेक्ट डायरेक्टली, है ना? सो दैट मीन्स because it cannot legislate on the health subject directly, therefore it cannot legislate on it indirectly too. So indirectly भी वो नहीं कर सकती. इसका मतलब अगर वो ऐसा कानून अगर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है जिसका ऑब्जेक्टिव या फिर जिसका पर्पस और जिसका इफेक्ट is have been impinged upon the subject of health. impinge मतलब related to health या health पे impact करता है, तो ऐसा कानून अगर पार्लियामेंट देखती है कि the substance of the law lies in the state domain, state list domain, तो पार्लियामेंट cannot make it in a law and it is pertinent enough for the Supreme Court to declare such a law as unconstitutional. तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा कोई कानून बनाती है जिसमें वो like if it makes a law which improves the health of the elderly people, for example. So if it makes a law that union government can make it mandatory for the senior residents of the country to have a regular medical checkup monthly or twice biannually or quarterly, anything, for example. तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे कर रहा है? हेल्थ पे कर रहा है. इनडायरेक्टली तो इसने नहीं बोला कि हेल्थ है, बट इट इज मैंडेटरी टू हैव मेडिकल चेकअप, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल चेकअप डायरेक्टली. या फिर मैं कुछ इमेजिनेशन से सोच रहा हूँ, या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोले कि चाइल्ड मोर्टेलिटी फॉर एग्जाम्पल, तो कानून बना दे कि जिस भी स्टेट में चाइल्ड मोर्टेलिटी एक पर्टिकुलर एक लिमिट, जो भी एक लिमिट सेट है उससे ज़्यादा होगी, तो फंड्स उसको रिलीज नहीं होंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर. तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ पे
सो हेल्थ को कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपने हेल्थ पे नहीं बनाया, बट चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, दैट इज रिलेटेड टू दी हेल्थ ओनली, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो आप फंड रिलीज नहीं करोगे, है ना। सो नॉट रिलीज दी फंड्स, अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी एक रेशियो से ज़्यादा है, सो नॉट रिलीज दी फॉर एग्जाम्पल टाइड फंड्स CSS प्रोग्राम्स के लिए, यू विल नॉट रिलीज। So that law will be declared as unconstitutional because directly it is not impacting the health, but indirectly it is relating with the health of the person, health of the children. So the object or the substance majorly is lying. So the substance of the law. So effect of the law. So effect. What is the effect of the law? Effect of the law is the funds will not be released. Intention will not be looked into. Funds will not be released. But for those states where child mortality ratio is greater than threshold, है ना? So I'll write in bold because it will not be, ये चमकेगा नहीं ना फिर ये. I'll write in bold. So अगर ऐसा कुछ आता है that child mortality if is greater than threshold then funds will not be released. If union government ऐसी कोई गाइडेंस लाती है, so effect mainly क्या है? Effect is this and child mortality. So these two things belongs to the substance of the act, and it is directly relating to the domain of the health where only state government can legislate. Union government cannot legislate. So that is why this law will be declared as unconstitutional. ये unconstitutional हो जाएगा by means of doctrine of culpable legislation. ये एक बहुत सिंपल तरीका था समझने का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, इंटेंशन ही देखते हैं। इंटेंशन मैलाफाइड भी हो सकती है यूनियन की, कि फंड्स, तो यूनियन अगर देखेगी भाई ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, जहाँ पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल बीजेपी की अभी एक सरकार है, और वो देखे कि वहाँ पे अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी हाँ इन स्टेट्स में ज़्यादा है कांग्रेस की, इनको फंड्स रिलीज नहीं करना है ताकि ये काम ना कर पाए और लोग परेशान होकर वापस बीजेपी को ले आए, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा हो सकता है। तो कोर्ट विल नॉट लुक इनटू द मैलाफाइड इंटेंशन, कोर्ट विल ओनली लुक इनटू द सब्सटेंस। इंटेंशन नहीं देखेगी डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो कोर्ट विल नॉट लुक इनटू द मैलाफाइड इंटेंशन इवन इफ इट इज मैलाफाइड, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इतना मेरे समझ में आ गया तो केस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, बट फिर भी कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो बेसिकली क्या है, आपको मालूम है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था। सो दी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म्स इन देयर टेरिटरी। लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि जमींदार्स के पास सारी लैंड जमींदार्स की ओनरशिप थी। तो टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास लैंड नहीं है या फिर जिनकी लैंड खत्म हो गई है, जमींदार्स ने हड़प ली है, क्योंकि बहुत हाई लैंडिंग रेट होता था, हाई इंटरेस्ट रेट होता था, और वो जमींदार से पैसा लेते थे, गिरवी रखते थे लैंड, वो नहीं छूटती थी तो जमींदार के पास ही जाती थी। बिकॉज ऑफ सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलेस लेबरर्स एंड वेरियस टेनेंट्स, जो टेनेंट्स होते थे, ठीक है ना, इनकी वजह से जब ये लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो इस केस में जो बिहार लैंड रिफॉर्म था ना, रिफॉर्म्स एक्ट, दैट वाज चैलेंज्ड, इसको चैलेंज किया गया था। सो इट वाज चैलेंज्ड। ये किसी जमींदार ने एक्चुअली चैलेंज किया था। सो दिस कामेश्वर सिंह वाज जमींदार
and it has challenged this Bihar Land Reforms Act. So that is why it is versus state of Bihar. ठीक है ना? So basically this Land Reform Act was held as constitutional ये डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली, but two of its provisions were held as unconstitutional, and here and those two points those two points were struck down on the basis of doctrine of colorable legislation. So courts have made use of doctrine of colorable legislation and declared two provisions of the act as unconstitutional and invalid. वो बेसिकली अभी हम समझ लेते हैं कि ये कमिश्नर सिंह और स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था, बेसिकली क्या चैलेंज हुआ था. ये बेसिकली अभी क्या होता था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में, क्या होता था कि लैंड क्या करते थे, लैंड स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती थी जमींदारों से. सो इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है किसके लिए, जमींदार के लिए, कि वो स्टेट को दे दे. बट स्टेट गवर्नमेंट विल पे जस्ट फेयर एंड इक्वल कंपनसेशन. एक जस्ट फेयर एंड इक्वल कंपनसेशन जमींदार को देगी, उसमें भेदभाव नहीं करेगी. और लैंड का एक कंपनसेशन, एक जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन सभी लैंड ओनर्स को देगी, यानी कि सभी जमींदार को देगी, और स्टेट अपने पास लैंड एक्वायर कर लेगी. ये बेसिकली पर्पस था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के, जिसमें बिहार का था कि बिहार की लैंड्स को ये एक्वायर करेंगे एंड देन दे विल पे जस्ट फेयर कंपनसेशन टू दी लैंड ओनर्स, जमींदार, एंड देन दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट दी लैंड टू दी लैंडलेस लेबरर्स. ठीक है. सो जमींदार दिस कमिश्नर सिंह हैज चैलेंज दिस बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. अब इसमें क्या था कि क्योंकि आपको एक जस्ट फेयर कंपनसेशन देना है, तो उन्होंने चैलेंज किया था इसको, बट इसको अपहेल्ड कर दिया था. बट दो प्रोविजंस इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए थे, क्योंकि उन प्रोविजंस में क्या था कि कंपेंसेशन जो जस्ट एंड फेयर देना था. सो इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 31A to acquire the land from the जमींदार्स by paying just fair compensation. So it is pertinent, or it is under the purview of parliament. It is legal for the parliament to enact such a law. तो एक्वायर करेगी और उनको कंपनसेशन दे देगी. बट दिस लॉ एक्चुअली, इस लॉ में क्या हुआ कि कंपनसेशन दिया ही नहीं गया. सो इट एक्चुअली, इसमें दिखाया गया कि कंपनसेशन विल बी गिवन, बट इन एक्चुअली नो कंपनसेशन विल बी गिवन टू जमींदार. वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ. इसमें क्या हुआ, जो लैंड ली गई जमींदार से, तो लैंड बेसिकली क्या होती थी, जमींदार अपनी लैंड दे देते थे, रेंट पे दे देते थे. किनको दे देते थे, टेनेंट्स को दे देते थे, लैंडलेस टेनेंट्स जो उसके ऊपर काम करते थे, लैंडलेस लेबरर्स, इंटरमीडिएरीज जिनको बोलते हैं, शेयर क्रॉपर्स. तो उनको दे देते थे, वो उसके ऊपर काम करते थे, और इन रिटर्न जो उसका प्रोड्यूस था, तो ओनरशिप तो जमींदार के पास रहेगी, और जो उसका प्रोड्यूस था वो किसके पास जाएगा, जमींदार के पास जाएगा. और जमींदार उसमें से 1/3, 2/3 तो अपने पास रखेंगे, और 1/3 उस लैंडलेस लेबरर को दे देंगे उसके जीवन यापन के लिए, है ना. ये प्रोविजन हुआ करता था. तो क्या हुआ कि जब ये लैंड एक्वायर की गई, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कहा गया कि ये लैंड एक्वायर की जाएगी, जो भी लैंड एक्वायर की जाएगी, तो जो भी उसका ड्यू होगा, यानी कि जो भी रेवेन्यू ड्यू होगा, 2/3 एंड 1/3, तो जो भी रेवेन्यू ड्यू होगा, जो कि उनको लैंडलेस लेबरर्स को देना है, ऑब्वियसली कुछ जो भी ड्यू होगा, जो कि जमींदार को मिलना है ना, एज रेंट. सो जमींदार का ड्यू क्या था, उनको रेंट मिलता था, लैंड से रेंट मिलता था ना, और प्रोड्यूस मिलता था. तो जिस टाइम गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है लैंड, उस टाइम कोई ड्यू बनता है उनका, और उसके अलावा कंपनसेशन बनता है. तो जमींदार को ये तीनों चीजें मिलती, रेंट मिलता, उस टाइम का रेंट, प्रोड्यूस जो हो चुका है, और कंपनसेशन, तो वो मिलना था जमींदार को. अभी क्या हुआ कि द रेंट एंड प्रोड्यूस विच वाज ड्यू टू जमींदार, सो दिस हैज बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी रेंट और जो भी प्रोड्यूस
जमींदार को मिलता शेयर इसके लैंडलेस लेबरर से, तो जो भी मिलता रेंट एंड प्रोड्यूस वो इसने ले लिया, एक्वायर कर लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसका 50%, सो 100% एक्वायर कर लिया, 100% एंड 50% जमींदार को रिलीज कर दिया एज कंपनसेशन ऑफ द लैंड, है ना, कंपनसेशन दे दिया लैंड। तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो राइट इन बोल्ड, तो जमींदार एज कंपनसेशन, तो 50% कंपनसेशन दिया, और वो भी क्या दिया, अलग से कुछ नहीं दिया, जो रेंट एंड प्रोड्यूस विच वाज ओड टू जमींदार्स, so state acquired that rent and produce, so whatever areas, whatever money which was owned to zamindars, so state government has acquired that money and then it has given the 50% of amount, उसमें प्रोविजनिंग की गई थी कि 50% जमींदार को कंपनसेशन में दिया जाएगा, उसमें से ये प्रोविजनिंग बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कुछ प्रोविजन में की गई थी। अब इशू ये था कि जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन देना है ऑब्वियसली सभी गवर्नमेंट्स को, देन ओनली इट कैन एक्वायर लैंड। अब जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन नहीं दिया गया, इसके अंदर बोला गया कि हम कंपनसेशन दिएंगे, बट दैट इज नॉट जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन, सो द कंपनसेशन इज अनजस्ट एंड अनफेयर बिकॉज आउट ऑफ 100% areas or the amount which state government has acquired, 50% उसी में से कंपनसेशन जमींदार को दे दिया। तो कंपनसेशन जो देना था आपको अपने पास से, वो आपने नहीं दिया, तो आपने क्या किया, आपने जमीन भी हथिया ली और कुछ दिया भी नहीं। सो जमीन भी हथिया ली और कुछ दिया भी नहीं, पर और दिखा दिया कंपनसेशन पे कर दिया। सो व्हाट यू कैन नॉट डन डायरेक्टली, सो डायरेक्टली आप क्या नहीं कर सकते थे, विदाउट पेइंग कंपनसेशन यू कैन नॉट एक्वायर द लैंड, बट हेयर यू हैव एक्वायर्ड द लैंड बाई पेइंग कंपनसेशन। सो आपने कंपनसेशन नहीं दिया, 50% दिया, और वो भी क्या दिया, रेंट और प्रोड्यूस, जो उनको ही मिलना था। सो वट यू कैन नॉट डन डायरेक्टली, यू कैन नॉट एक्वायर लैंड विदाउट पेइंग कंपनसेशन, बट यू हैव एक्वायर्ड विदाउट पेइंग कंपनसेशन, सो हैव नॉट पेड एनी कंपनसेशन एंड यू हैव एक्वायर्ड, you try to acquire the land, you try to usurp the land. So that is why these provisions have been declared as challenged in the court and using doctrine of colorable legislation. So whatever you cannot done directly, you cannot done indirectly also. So that is why this is declared as invalid. तो इसमें क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल, मैं इसको कंक्लूड करूंगा। एक गजपति भी केस था जिसमें कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो गाइडलाइंस यही थी कि मेलाफाइड इंटेंशन हो, कैसा भी हो, वी विल नॉट लुक इनटू द इंटेंशन, वी विल लुक इनटू द इफेक्ट ऑफ द लॉ, वी विल लुक इनटू द सब्सटेंस ऑफ द लॉ, वी विल लुक इनटू द पर्पस ऑफ द लॉ ओनली, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, विल नॉट लुक इनटू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेशन। तो गजपति में ये गाइडलाइंस दी थी, तो उसका मतलब ये है, तो इसमें बेसिकली क्या चेक करता है कोर्ट, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं है आपकी। So if you are not, so here you are not legislatively competent because without paying compensation you cannot acquire the land. So the court will look into the legislative competence of the authority which is implementing the law or which is actually passing the law or enacting a law, ठीक है ना। So court will look into the legislative competence, तो यूनियन ऑन कॉन्करेंट में करेगी पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में करेगी और कॉन्करेंट में करेगी। तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन को टच करती है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल बिकॉज इट इज बीइंग यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज सो you are not competent to implement such a law. Similarly यूनियन के लिए भी, so what you cannot done directly, you cannot done it directly, so you cannot done it indirectly also. तो आप किसी और तरीके से कोशिश करेंगे उसको टच करने की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिसमें आप कंपिटेंट नहीं हो, तो आप नहीं कर पाएंगे टच, आप यू विल बी, द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून है जो पर्पजली नहीं, इम्पर्पजली, अगर उसका fringes, if it is touching on the fringes of the other subject or the other list,
So if the union law is being touching the fringes of the other subject, then it will be declared as past. तो अगर अनइंटेंशनली ये टच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अनइंटेंशनली टचिंग ऑन दी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे तो बेसिकली इसमें हम ऐसा कर सकते थे कि जैसे मैंने बताया कि इफ एनी लॉ, so court will look into the constitutionality of the law by seeing the substance of the law. So if the substance of the law lies in the list which is under the competency of the said legislature, then there is no issue, ठीक है ना, if the substance of the law lies. But if the substance of the law lies in another list which is not under the competency of the legislature, then it will be declared as null and void. So what you cannot done directly, you cannot implement a law in that area directly, so you cannot do it indirectly also. तो बेसिकली सब्सटेंस ऑफ द लॉ देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई लैंड एक्विजिशन के लिए कानून बनाया है सरकार ने, और सरकार उसके साथ रिहेबिलिटेट एंड रीसेटल भी कर रही है, तो उसको वाटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, लैंड उसको ज़मीन भी दी जाएगी इन रिटर्न, उसको हाउसिंग भी दी जाएगी, जो भी है, बट दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन एक्चुअल सब्सटेंस क्या है? लैंड एक्विजिशन, उसका लैंड एक्वायर करना है फॉर सच अ प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड whatever it is there. So land acquisition is the substance of the law, and whatever rehabilitation is required to be done, that is actually comes under the fringes of the law, or it is a side effect of the law which is not comes under the substance of the law. And ये pith and substance में भी आता है कि it is not under the substance but it is the pith of the law, it is not the substance of the law. तो similarly ये कहीं ना कहीं थोड़ा ये दोनों जो डॉक्ट्राइन्स होते हैं कहीं ना कहीं ये लिंक करते हैं कि जहाँ पे आप कॉम्पिटेंस नहीं हो वहाँ पे आप नहीं करोगे इम्प्लीमेंट, लॉ लेजिस्लेट इनेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर सब्सटेंस ऑफ द लॉ अगर आपकी कॉम्पिटेंसी में है, इवन इफ द साइड इफेक्ट ऑफ द लॉ may coincides with the other subject which is not under your competency, even that the court will declare the law as constitutional and valid. So here the substance of the law is the acquiring of the land. So in return of the acquiring of the land, you are resettling and rehabilitate the persons and the families. So that is under the competence. Even if the rehabilitation and resettlement is there written is touch those subjects which are in the state list, even then only the substance of the law lies in the concurrent list, which is acquisition of and requisitioning of property, ठीक है। So what you cannot done directly, और आप इसमें legislate नहीं कर सकते, so you cannot do it indirectly also. So अगर आप legislate नहीं कर सकते उसके अंदर किसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप इनडायरेक्टली भी उसको पे लेजिस्लेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगर आपको कोई CSS स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है तो आपने बोल दिया कि आपका परफॉर्मेंस अगर इतना रहेगा तो हम CSS देंगे, तो परफॉर्मेंस आपने चाइल्ड मोर्टेलिटी का रख दिया, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी आप नहीं रख सकते बिकॉज दैट डायरेक्टली इम्पिंजेस अपॉन दी हेल्थ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट अंडर योर कॉम्पिटेंस। सो यू कैन नॉट से दैट कि इतना चाइल्ड मोर्टेलिटी होगा तभी आप देंगे, सो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप ये कर सकते थे कि आप CSS देंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि इतना ग्रोथ रेट हो तो आप CSS इतना देंगे, इतना कम रहेगा तो आप इतना दे सकते हैं, बट चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में आप बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि चाइल्ड मोर्टेलिटी के बेसिस पे, बिकॉज सब्सटेंस वहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंड इट इज़ नॉट अंडर योर कॉम्पिटेंस टू टेक अ मैटर or which is child mortality, which is not under your competence, because you cannot enact a law according to the child mortality. Child mortality के बेसिस पे आप कोई कानून नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको लॉ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली डिटेल समझने की ज़रूरत है, बट बाकी स्टूडेंट्स को पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, GS के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपको एग्जाम में ही कोट करना पड़ेगा, एग्जाम में कोट करना होता है आंसर्स में,
तो आप आंसर्स में कोट कीजिए एंड एनरिच योर आंसर बाय शोइंग टू द एग्जामिनर दैट यू नो दीज मच टर्मिनोलॉजी विच इज सुप्रीम कोर्ट की टर्मिनोलॉजीज हैं जो द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली यूटिलाइज while deciding upon a case when it is sitting upon a case and deciding the solution and deciding upon the merits of the case. So definitely this doctrine of colorable legislation definitely enriches your answer in that sense. So you can write or examiner may ask like in 2019 I think 2019 only. So in 2019 mains doctrine of harmonious reconstruction has been asked. So you never know where examiner agar if examiner can ask about doctrine of colorable legislation also. So you should be ready. और ये 7 शेड्यूल में भी आता है जैसे मैंने बताया ना क्योंकि आपने दूसरे उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया कॉम्पिटेंसी में नहीं है तो 7 शेड्यूल में 2 डॉक्ट्राइंस आते हैं जिसके बेसिस पे 7 शेड्यूल के अंदर जो कॉम्पिटेंसी है अगर वो वायलेट होती है तो कोर्ट्स ये डॉक्ट्राइंस को फॉलो करते हैं. सो वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस और अदर इज डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. So in the next lecture we will discuss the doctrine of pitch and substance and the other minor doctrines. I'll make a cumulative or I'll try to make a separate lecture on each and every doctrine. So 5 minutes lecture. Okay. So अगर आपको lecture अच्छा लगा तो आप इसको like करें, subscribe करें मेरे चैनल को. ठीक है. Okay.